Member Sri Ram Shomani Verma ji. बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत सरकार द्वारा संचालित योजना के अंतर्गत प्रत्येक गांव में आंगनबाड़ी केंद्र पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के सहायक हेतु एक सहायिका होती है। सहायिका का कार्य केंद्र की सफाई करना, बच्चों को घर से बुला करके पोषाहार बंटवाना, टीकाकरण के कार्य में मदद करना, खाना बनाना आदि लगभग 7-8 घंटे का कार्य करना पड़ता है। प्रतिमाह उनको रुपया 2750 रुपया मानदेय मिलता है, जो एक दिन 100 रुपये से भी कम है, जो भारत सरकार की न्यूनतम मजदूरी से भी बहुत ही कम है। सरकार द्वारा कभी भी निकाल करके बाहर भी कर दिया जाता है। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 62 वर्ष से अधिक सहायिकाओं को भी निकाल दिया गया था, जिनकी संख्या लगभग 35,000 तक थी। निकालने के बाद इन्हें कोई भी धनराशि नहीं दी जाती है। जानकारी में आया है कि कुछ राज्य सहयोग के तौर पर कुछ धनराशि प्रतिमाह देते हैं, परंतु उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं दिया जा रहा है। इन्हें कोई भी छुट्टी नहीं मिलती है। छुट्टी के कार्य दिवसों में भी इनसे टीकाकरण आदि जैसे कार्य कराए जाते हैं। उनका कुछ भी अलग से मानदेय धनराशि नहीं दिया जाता है। बीमारी हो जाने या आवश्यक कार्य से न आने पर मानदेय काट लिया जाता है। इन्हें कोई भी मेडिकल की सुविधा नहीं है तथा हर साल के बाद रिटायर मानकर बाहर करने पर कोई पेंशन आदि भी नहीं मिलती है। सभापति महोदय, मेरी सरकार से मांग है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका को भी सरकारी कर्मचारी का अस्थायी रूप से दर्जा मिलना चाहिए और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय कम से कम 3,000 और सहायिकाओं का मानदेय कम से कम 10,000 होना चाहिए। सभापति महोदय, साथ ही सरकार से मेरी मांग है कि ये सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को स्वास्थ्य सुविधा सेवा सुनिश्चित किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी हाल में ही और वर्तमान दौर में कोविड-19 हेतु टीकाकरण और बीमार लोगों को भी सेवा में लगाया जाता रहा है। अंत में मैं सरकार से इन कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं की मृत्यु के उपरांत जब वो कार्यसेवा से समाप्त होते हैं तो उनको मृत्यु के बाद भी कम से कम सरकार उनको कम से कम 5 लाख रुपया देने का काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद। Thomas. Thank you very much for giving me an opportunity to speak on the resolution moved by Sri Ridesh Pandeyji, Member of Parliament, seeking to provide various welfare measures to the Anganwadi workers and helpers. Sir, this is the first move in India to empower the women and children. As we all know, it was introduced in 1975, October 2nd, to improve the conditions of the women and children in the rural area. The Anganwadi workers are doing exemplary service.
They are acting as mothers to the children from the age of 3 to 6. They act as teachers to the children. They serve the mothers, then the adolescent girls, to provide them the better food so that their health is maintained. Sir, they are called upon to do lot of services. They provide services to the lactating mothers, pregnant women, adolescent girls, then again, as I told, to the children of the age of 3 to 6. They are also called upon to provide more services in various departments. The surveys done by most of the departments are conducted by or asked to be conducted by the Anganwadi teachers. So they are not properly compensated, sir. They serve the humanity, they serve the society with all will and pleasure, but they are not compensated properly. Their salary, as we all know, is very meager. It is not called even salary. It is called only honorarium. And the central government provides to the Anganwadi workers 4,500 and Anganwadi helpers, it is only 2,900. Sir, in Kerala, the government of Kerala provides an additional amount of, say, 7,500 so that their monthly income is 12,000 rupees. In the case of Anganwadi helpers, it is only 8,000 rupees. It is not even 500 rupees per day. So it is a humanitarian consideration to provide them a better salary, and it should be called as a salary. My humble suggestion is that they should be provided, they should be given a minimum scale of a last grade government employee in central government so that they will get at least 22,000 rupees per month to manage their families. Second, the Anganwadis are not having sufficient facilities, infrastructure. Most of the Anganwadis are working in rented buildings, dilapidated buildings even I can say. That condition should be changed because children are very coming from the rural area. They are at the tender age of 3 to 6. These teachers and helpers, they take care of them. These buildings in which the Anganwadis are functioning should be safe enough that the government should ensure that. The rent is provided by the central government. To my knowledge, in rural area, rent is provided is 1,000 rupees. And in urban area, is The infrastructure and building facilities, our state, Kerala, is better. of course, it is better, but it is not fully You can explain. in Kerala. You can explain. Even in Kerala, see, I have, as an MLA, I have provided fund, MLA fund for construction of Anganwadis. Even now, the government is also, Kerala government is also providing some special facilities for construction of Anganwadis, provided they have a piece of land, at least 3 cents of land, donated by somebody. But the central government also should take initiative High-tech Anganwadis. to provide
Anganwadis with better facilities, so that, as Honorable Chairperson told, it should be high-tech Anganwadis to suit the current situation. The parents of poor families, they want their children to have better facilities in these Anganwadis. Other children go to public schools where their children are getting very good facilities in the preschools. So it is only but natural and justifiable that the government should provide sufficient facilities to these Anganwadis for improve their infrastructure. I was telling about the rent being paid. In most of the cases, these poor Anganwadi workers are sharing the rent, part of the rent from their honorarium. That should be avoided. The government should revise the rate of rent to be provided for these buildings. That is only my request. Even now there are arrears to be paid to the Anganwadi buildings. That also should be paid. In Kerala, there are now 33,115 Anganwadis with 66,000, more than 66,000 workers and helpers. These Anganwadis do not have sufficient infrastructure, including drinking water and sanitation facilities. Better sanitation facilities should be provided. Sir, I would request the government, in addition to providing them this service as government employees, last grade employees, they should also be eligible for ESI and such other facilities available to other government employees. Then I would also request the government that all the Anganwadis should be, the services given by these teachers, that should be recognized properly. During the COVID season, COVID pandemic, most of the Anganwadi teachers were in the service of the COVID patients. So such kind of services should be recognized, and these services being provided by Anganwadi teachers should be compensated properly. That is all what I want. Thank you, Honorable Member Shri Rajendra Agarwal ji. बात है। धन्यवाद आदरणीय सभापति जी, आपने मुझे अवसर दिया वेलफेयर मेजर्स फॉर आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड आंगनवाड़ी हेल्पर्स। हमारे श्री माननीय सांसद रितेश पांडे जी के द्वारा ये प्रस्ताव विचारार्थ सदन में प्रस्तुत किया गया था। अनेक वक्ता इस पर बोल चुके हैं। मुझको ये लगता है आदरणीय सभापति जी, जब भी मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को देखता हूं या उसी स्तर पर आशा जो हमारी बहनें उनको भी मैं देखता हूं, तो मेरे मन में एक ख्याल तुरंत ही आता है कि केंद्र के स्तर के ऊपर, राज्य के स्तर के ऊपर आप कितनी भी अच्छी योजनाएं बनाएं, लेकिन यदि उसको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है तो उसके लिए आवश्यक तंत्र बनाए बगैर और उनको सहभागी बनाए बगैर आप उन योजनाओं का लाभ सामान्य जन तक, जिस व्यक्ति तक उसको पहुंचाना उस तक पहुंचा नहीं सकते। और आंगनवाड़ी जो कार्यकर्त्री हैं हमारी, उस दृष्टि से मैं उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। जैसे सिंचाई के क्षेत्र के अंदर एक शब्द बहुत चलता है
कि पानी टेल तक पहुंचना चाहिए। कोई नहर है या कोई पानी का अन्य स्रोत है, कोई ट्यूबवेल है जहां से खेत की सिंचाई होनी है, तो खेत के प्रत्येक स्थान तक और आखिरी स्थान तक पानी पहुंचे, इसके लिए कुछ व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं और उन व्यवस्थाओं को करने के पश्चात ही वो पानी खेत के प्रत्येक स्थान तक पहुंच पाता है और किसान को फसल को ठीक से उगाने में मदद मिलती है। इसी प्रकार से लास्ट मैन तक की जो डिलीवरी है, लास्ट पॉइंट तक की जो डिलीवरी है, उसमें आंगनवाड़ी बहनों का बहुत बड़ा योगदान है। और ये बात तो ठीक है कि इस योजना की शुरुआत 1975 में की गई और काम भी होता रहा, परंतु समग्रता की दृष्टि के साथ इसको एक बड़ा अवसर भी मानते हुए और बड़ी चुनौती भी मानते हुए, जो काम प्राय बड़े असंभव लगते थे, जो कठिन लगते थे, जो होते हुए नहीं दिखते थे, माने इस बात को सब स्वीकार करेंगे, अनुभव है इस बात के कि हमारी माननीय मंत्री आदरणीय स्मृति ईरानी जी के नेतृत्व में, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जिस प्रकार से व्यवस्थाएं खड़ी की गई, उसका परिणाम आज ये है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का जो मैंडेट है, जो उनसे अपेक्षा है, उसको उन्होंने बहुत बेहतर ढंग से पिछले दिनों के अंदर पूरा किया है। कोरोना के काल के अंदर तो उनका जो परिश्रम है वो तपस्या जैसा रहा है। हमको बहुत बार ध्यान में नहीं आता, शहर तक हमारी दृष्टि जाती है, शहर के अंदर घटनाएं होती हैं, वो हमारी निगाह में रहती हैं। बड़े शहरों में होती हैं तो समाचार पत्र भी उसका संज्ञान लेते हैं, मीडिया भी संज्ञान लेता है। राजधानी में होती है तो और भी वो एक बड़ी खबर बनती है। लेकिन दूरस्थ गांवों के अंदर किस प्रकार से छोटे छोटे जो हमारे परिवार हैं, जो आर्थिक दृष्टि से बहुत निचले स्तर पर भी हैं, जिनके पास अन्यथा कोई सुविधाएं नहीं है, जिनके पास ठीक प्रकार की जो रहने की स्थितियां वह भी नहीं है, लेकिन उनके बीच में जाकर के काम करना, उनको सरकारी योजनाओं की जानकारी देना, उन व्यवस्था में उनको सहभागी बनाना और कुल मिलाकर के इतने बड़े संक्रमण के काल के अंदर उनको सुरक्षित रखना, मां को सुरक्षित रखना, बच्चे को सुरक्षित रखना। जबकि आप जानते हैं कोरोना का काल तो ऐसा था कि परिवार के सदस्य भी परस्पर मिलने में संकोच करते थे, भयाक्रांत रहते थे कि कहीं संक्रमण हुआ तो उनको भी ना हो जाए। ऐसी परिस्थितियों में संपूर्ण देश में, और मैं मेरठ से आता हूं, उत्तर प्रदेश का मेरठ जनपद है, मैंने देखा है कि जो कुछ भी उत्तर प्रदेश के अंदर सफलता माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों के कारण से कोरोना संक्रमण के काल के अंदर मिली, उसके अनेक पहलू हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो अंतिम व्यक्ति तक उन सुविधाओं को पहुंचा करके उस कोरोना के संक्रमण से, कोरोना के द्वारा जनित जो समस्याएं थी, उनसे निपटने में हमारी जो इन आंगनवाड़ी बहनों का जो सहयोग रहा है, जो उनका कर्तृत्व रहा है, वो वास्तव में बहुत विशेष है, बहुत अभिनंदनीय है। और मैं यहाँ पर भी उन बहनों का बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूँ। क्या आपको कंटिन्यू करना? बोलो अभी। जी जी जी, मेरे नहीं आगे भी है। हाँ, पूरे देश में है, पूरे प्रदेश में है, पूरे देश में है। जी जी जी, अभी देखिए, यदि एक तो मैं आंकड़े छोटे छोटे, कोई ज़्यादा अभी बड़े आंकड़े नहीं दूंगा। मुझे लगता है कि आज आप मुझे पूरा समय नहीं दे पाए प्रदान करेंगे। तो आप खड़े रहेंगे? हाँ, मैं खड़ा रहूँगा, वो तो मैं ठीक है जी, मैं खड़ा रहूँगा जी। तो खास तौर से अब देखिए, जो बेनिफिशियरीज की संख्या है, आप देखिए कितनी बड़ी संख्या है ये।
वो जो डिलीवरी सिस्टम के सुधर जाने के परिणाम स्वरूप जो होती है। आज 6 महीने से लेकर के 6 वर्ष तक के जो छोटे बच्चे हैं, जो आंगनवाड़ी या ये जो हमारा अम्ब्रेला ICDS की जो स्कीम है, जो माननीय मंत्री जी के द्वारा 2017 से प्रारंभ हुई, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, तो उसमें आज उनके द्वारा जो बेनिफिशरीज की जो संख्या है बच्चों की है 7,36,91,025, यानी लगभग 7.5 करोड़ की संख्या ये है। और इसी प्रकार से जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं या जो दुग्धपान कराने वाली, जिनके छोटे बच्चे, जिनकी गोद में शिशु की जो माएँ हैं, उनकी संख्या 1,69,25,928। और ये दोनों संख्या यदि जोड़ दें तो ये 9 करोड़ से भी अधिक की संख्या बैठती है। और आप ये देखिए इसका परिणाम क्या होता है। इसका परिणाम ये हुआ है कि जहां बच्चे कुपोषण से मुक्त हुए हैं, जन्म के समय जो कुपोषण बच्चे के शरीर के अंदर घर कर जाता है, उसको बाद में भी उससे निकालना बड़ा मुश्किल होता है। जन्म के समय जो सावधानी बरत ली जाती है तो वो बच्चे की जैसे एक फाउंडेशन है, उसको ठीक करके चलती है और बाद में बच्चे को कठिनाई कम आती है। तो जो संभावित कुपोषण है उससे वो बच्चे मुक्त रहते हैं। और जो माएँ हैं उनको भी इस कुपोषण से मुक्ति के अभियान के अंदर सहभागी बना करके उनको भी एक बेहतर न्यूट्रिशन प्रदान करके एक अच्छे परिवार की शुरुआत की जाती है। तो इतने लाभार्थी पूरे इस योजना के द्वारा हुए हैं। और निश्चित रूप से जो इस योजना के उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों की प्राप्ति की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है जिसका मैंने उल्लेख किया है। अभी तो जो नई शिक्षा नीति आई है, नई शिक्षा नीति के अंदर खासतौर से आंगनवाड़ी का बड़ा भारी महत्व हो गया है। हमें जानते हैं कि बहुत सा बार गांवों के अंदर जो हमारी बहनें हैं, उनके छोटे बच्चे रहते हैं, उनको ठीक प्रकार से शिक्षा की सुविधा प्राप्त नहीं हो पाती है। स्कूलिंग है, सब बातें हैं, लेकिन वो कामकाजी महिलाएं भी होती हैं। तो आंगनवाड़ी के अंदर उन बच्चों की शुरू से चिंता करना, शहरी क्षेत्र में तो प्ले स्कूल हैं, जिनके पास धन है वो प्ले स्कूल में बच्चों को एडमिट करा देते हैं, वहाँ वो बच्चा खेलता रहता है, सीखता रहता है, उनको उनके साधन उस साधन का उपयोग करते हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जिनके पास उस प्रकार के साधन नहीं हैं, उनके लिए आंगनवाड़ी की व्यवस्था NEP के अंदर भी की गई है, उसका प्रावधान किया गया। और ये जो जिम्मेदारी है बहुत अधिक एक प्रिसाइज व्यवस्था के साथ उनको दी गई। उसका भी लाभ जो है आप देखेंगे कि धीरे धीरे जैसे जैसे NEP का विस्तार की योजना का विस्तार होगा, उनकी भूमिका और भी बढ़ती चली जाएगी। इस प्रकार से आंगनवाड़ी का जो हमारी कार्यकर्त्रियां हैं, ये मिलकर के चाहे स्वास्थ्य का विषय हो, पोषण का विषय हो, जननी सुरक्षा का विषय हो, शिक्षा का विषय हो, उसके अंदर उनकी बड़ी भारी भूमिका है, जिनका वो निरंतर उसका वो पालन करती रही हैं। और बहुत बड़ी भूमिका जो मैंने प्रारंभ में मैं कह रहा था जिस बात को, कि टेल तक पानी पहुंचाना, यानी डिलीवरी सिस्टम को ठीक करते हुए, क्योंकि कोई भी योजना यदि हमको नीचे तक पहुंचानी है, जैसा हमारे हम लोग अंत्योदय की बात हम लोग बराबर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अंत तक के व्यक्ति जो विकास की दृष्टि से अंत में खड़ा है उस तक सुविधा पहुंचे, ये हमारी सरकार का लक्ष्य है। जब माननीय प्रधानमंत्री 2014 में उन्होंने शपथ ग्रहण की तो उसके साथ ही उन्होंने इस बात को कहा कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित होगी, मेरी सरकार गांवों को समर्पित होगी, मेरी सरकार महिलाओं को समर्पित होगी, यानी जो इस प्रकार किसानों को समर्पित होगी। इस प्रकार का जो एक संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से घोषित किया। और पिछले 7.5 साल के अंदर देश के प्रधान सेवक के नाते निरंतर परिश्रम करते हुए, जिसका वो निरंतर इन वर्गों को राहत पहुंचा रहे हैं, उस क्रम में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कंटिन्यूअस सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 13 दिसंबर 2021 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद।